से टकराएगा। चाहे सीना हो जाए छल्ली, तिरंगा ऊंचा ही लहराएगा। इस्तेमाल करें। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल
And my dear children, I'll speak partly in English, partly in Hindi so that they also can understand, right? Okay. Today we celebrate Independence Day. और इस स्वतंत्र के दिन जब हम हमारे देश की भक्ति में, हमारे देश की सेवा में, हमारा देश के लिए कुछ करने के लिए इरादा बना के यहाँ बैठे हैं, तब आप लोगों के सामने ज्यादा लंबा नहीं करूंगा बारिश के डर से, लेकिन 2-3 मुद्दे आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ. First, to the children. You saw I brought 2 small children here to hoist the flag with me. Those 2 children represent all of you. Why? Because you are our future. This country will become what you become. आप लोग अच्छे बनेंगे तो देश अच्छा बनेगा. आप लोग बुरे बनेंगे तो देश भी बुरा बनेगा और हमारा भविष्य भी बुरा बनेगा. इसलिए we bring you here to give you good education. Your parents send you to this good school. I can proudly say this is the best school in Latihar, but it must become better. But it depends on you how you grow up. हमें देश के अच्छे नागरिक चाहिए. इस देश में जहां भ्रष्टाचार इतना चलता है, हमें ईमानदार लोग चाहिए. इस देश का भविष्य बनाने के लिए हमें disciplined soldiers of the country. There are 3 things I ask you. First, you must focus your whole attention on your studies. जानते हैं आज एक शैतान घूम रहा है. उस शैतान का नाम जानते हैं? मोबाइल. मोबाइल. पढ़ाई करने के टाइम और मोबाइल देखना है पूरा. पूरा हमारा टाइम भी चुरा लेता है और हमें हमारे पढ़ाई से दूर करता है. It takes you away from your focus. Especially bigger children. Keep a time for your mobile. Use that mobile only at that time. Rest of the time, studies, work, help your parents. I'm not saying do not use mobile. You must know to use the mobile. Please do use the mobile, but limited time. Fixed time, not only limited, fixed. 6:30 बजे तो 6:30 बजे. न उसके पहले न उसके बाद. So, study. Second, और ये हमारे सबों के लिए बहुत ही जरूरी है. All of you are brothers and sisters. हम सब भाई बहन हैं.
There is no Christian, no Muslim, no Hindu, no Sadhana. We are children of one God. Do not allow anybody to divide you in the name of religion, caste or language. भारत देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। यदि धर्म के नाम, कास्ट के नाम, भाषा के नाम पे विभाजन करेंगे तो हम एक दूसरे के बीच झगड़ा करने ही बैठेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज जो विदेश के देश हैं इसलिए आगे बढ़े हैं क्योंकि एक दूसरे का धर्म नहीं देखते हैं, जाति नहीं देखते हैं, एक साथ मिलकर भाई बहन जैसे काम करते हैं। और तीसरा, एंड आई वांट टू एंड अप विद दैट, हमारे सबों के ऊपर एक भगवान है। कोई भी नाम से उसे पुकारे, एक भगवान है, उस भगवान को भूलना नहीं। अपने अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करना है, अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करना है, अपने पढ़ाई के लिए प्रार्थना करना है, देश के लिए प्रार्थना। यदि हम एक साथ चलेंगे, परिश्रम करेंगे और प्रभु के संपर्क में रहेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। सबों को धन्यवाद और जोहार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। Than human liberty and dignity. With this thought, small revolts were started up against the Britishers by our freedom fighters. It took a lot of time and effort to pursue common people to contribute in the way of freedom. Gradually, taking freedom from the Britishers became the one and only motive of each and every person of India. Be it a child or an old person, everyone contributed from their soul to get freedom. Now, as the whole country was united, small revolts transformed into big movements. Under the leadership of our leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many others. Several lives were sacrificed for our country. It was the time when India was shaded with blood of several people. After so much struggle, we finally persuaded the British to leave our country. And this golden day was 15th August in the year 1947. Now, India gained independence but lost its humanity and unity. And we all are well aware about the situation of India in 1947 and the India today. It was really hard for India to reach till this point from the condition it was left. Within these 77 years, India reformed itself in every aspect, be it social, economical, educational, scientific resources and armed forces as well. Although India is now competing with the topmost countries in the world, yet we are not up to that mark where we should be after 77 years of independence. However, it's for a great pride to us to reach till this point. But we must not forget the sacrifice of our forefathers and ancestors who gave us this land of peace. As we all know, a country develops with its developed citizens. So, I would like to share a quote with you. This is our pride, this is our day. This is our pride, this is our day, this is our India and will always march ahead. With this thought, I end up my words and once again, I wish you happy and glorious Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. We have to do hard work, and our hard work and only hard work will change that. With this,
Next, we have another speaker who has some inspiring words to share her thought with us on this special day. So I would like to call Manisha Kumari of Standard 9 to deliver her Hindi speech. Next, be ready, students of Standard 9 and 10, with your English patriotic song. गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा, आसमान में तिरंगा हमारा। आदरणीय मुख्य अतिथि ऋषभ स्वामी, प्रेरित प्रशासक डाल्टनगंज, आदरणीय प्रधानाध्यापक विद्यालय स्कूल समिति, आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं मनीषा कुमारी कक्षा 9वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ स्वतंत्रता दिवस पर कुछ शब्द बोलने के लिए। 77वें स्वाधीनता दिवस की पूर्ण संध्या पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है। एक स्वाधीन देश के रूप में भारत पूरे 77 साल पूरे कर रहा है। 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाई जा रही है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण एवं एकता को बढ़ावा देना है। 15 अगस्त 1947 के दिन को हमने अपनी औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को काट दिया था। उस दिन हमने अपनी नियति को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया था। उस शुभ दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करते हैं, जैसा कि उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हम सभी स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें। भारत की आज़ादी न केवल भारतवासियों के लिए बल्कि विश्व में हर लोकतंत्र के समर्थक के लिए एक उत्सव का विषय रहा है। जब हमारा भारत देश स्वाधीन हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं एवं विचारकों ने लोकतंत्र की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की थी। उनकी इस आशंका के कई कारण भी थे। उन दिनों लोकतंत्र आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्रों तक ही सीमित था। कई विदेशी शासकों ने हमारे भारत देश का शोषण किया। इसी कारण हमारे भारतवासियों को अशिक्षा एवं गरीबी से जूझना भी पड़ा था। परंतु हमारे भारतवासियों ने उन सभी की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया था। भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जड़ें लगातार मजबूत होती गई। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा था। परंतु हमारे भारत में गणतंत्र की शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त था। अर्थात भारत को यह श्रेय जाता है कि उसने विश्व समुदाय को लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता से परिचय कराया। मैं यह मानती हूँ कि भारत की यह उपलब्धि केवल एक संयोग नहीं है। सभ्यता के आरंभ से ही कई महान ऋषियों एवं संतों ने सभी प्राणियों की समान व एकता पर एक जीवन दृष्टि विकसित कर ली थी। महात्मा गांधी जैसे महान नेता के नेतृत्व में हुए स्वाधीनता संग्राम के दौरान इन प्राचीन जीवन दृष्टियों को अपनाया जा चुका था। इसी कारण हमारे लोकतंत्र में भारतीयता के तत्व दिखाई देते हैं। जब हम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं तो वास्तव में हम अपनी भारतीयता का उत्सव मनाते हैं। हमारा भारत देश कई सारी विविधताओं से भरा हुआ है, परंतु इन सभी विविधताओं में कुछ न कुछ एक ऐसा है जो हम सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारा भारत देश अपने झीलों, वनों, नदियों, पहाड़ों तथा वनों में रहने वाले जीव जंतुओं को लेकर एक बहुत ही आकर्षक स्थल है। अंत में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी भारत की सुंदरता से जुड़ी हर एक चीज़ का दृढ़ता पूर्वक संरक्षण करें, क्योंकि ये हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक पहला कर्तव्य होगा। अपनी प्रकृति की देखभाल माँ की तरह करना हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। योग एवं आयुर्वेद भारत की ओर से विश्व समुदाय के लिए एक भेंट ही तो है। हमारे पास जो कुछ भी है हमारी मातृभूमि का दिया हुआ है। इसीलिए अपनी मातृभूमि की प्रगति, समृद्धि एवं सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देने का हमें संकल्प लेना चाहिए। कन्नड़ भाषा के महान कवि कुवेलेंपु ने कहा है,
ನಾನು ಅಲಿವೆ ನೀನು ಅಲಿವೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ बुगल मेले मुटुवुदु नव भारत दलीले। अर्थात न मैं रहूंगी न रहेंगे आप, न मैं रहूंगी न रहेंगे आप, परंतु हमारी अस्थियों पर उदित होगी नव भारत की महागाथा। उस महान राष्ट्रवादी कवि का यह स्पष्ट आह्वान है कि अपनी मातृभूमि एवं देशवासियों के लिए सब कुछ अर्पण कर देना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। मैं अपनी युवा पीढ़ियों से यह अनुरोध करती हूँ कि वे इन सभी जीवन मूल्यों को अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि वे युवा ही हमारे नए भारत का निर्माण करेंगे। अपना संबोधन समाप्त करने से पहले मैं सभी देशवासियों की मंगलमय एवं सुखद जीवन की शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। न वस्त्र का न ही रंग का, न रंग का न ही वस्त्र का, ये ध्वज देश की शान है, यही हम सभी भारतवासियों की शान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और 3 रंगों में रंगा हुआ ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। But you cannot kill the ideas. Great empires crumble while the ideas survived. This quote was written on the leaflets by the Bhagat Singh. He threw this at the Central Assembly on 8th April 1929. Since then, it has been quoted several times by revolutionaries. The legendary revolutionary died for the country when he was only 24 years old, but his inspiring action continued to stir the desire for freedom. With this, I would like to call students of Standard 6 and 7 with their patriotic dance. Next, be ready, Standard 8 with your skit. तलवारों पे सर तलवार दिए अंगारों में जिस्म चढ़ाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग
तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक आ जाएंगे भूल चीज हम तेरे कदमों में हम भेंट अपने सनम की चढ़ा जाएंगे है वतन मेरा जूता है जापानी इंग्लिस्तानी सर पे लाल कबीरों से फिर भी है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी इंग्लिस्तानी सर पे लाल कबीरों से फिर भी है हिंदुस्तानी मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा ये देश नहीं झुकने दूंगा सौगंध मुझे इस मिट्टी की सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा सौगंध मुझे इस मिट्टी की ये देश नहीं मिटने दूंगा मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा कब मेरा कर्ज चुकाओगे ये अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन
ये देश नहीं झुकने दूंगा। In the words of Lal Bahadur Shastri, I quote, "In this vast country of ours, people profess different religions, speak different languages, dress differently, and observe different customs. But we are one nation. The history of our freedom struggle and our faith in future development are our common bonds. We are all Indians, and that is our only identity." Continuing with the same feeling of unity, I would like to invite Standard 8 with their skit and dance on the theme Unity in Diversity. Next, be ready Standard 3 and 4 with your drill. स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
एक अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाकर लुटा जाएंगे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीर पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीर पराए जाने रे। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन बलिदान है। जान से सबसे गुलस्तान मिट्टी में डूब जावा डूब के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू। वतन तेरे आबाद रहे तू, वतन तेरे आबाद रहे तू, ये जहान हो जहां आबाद रहे तू।
है जहाँ रहूं जहाँ मेरा रहे तू, ऐ वतन, मेरे वतन, ऐ वतन।